Hello everyone, welcome to EduChemy. My name is Deepshikha and today we'll talk about the difference between a spring tide and a neap tide. ठीक है, so सबसे पहले we have to understand what is a tide. अब जो ocean tides हैं, आपने इसके बारे में सुना होगा. There are you can see कि कुछ rise and fall होता है in terms of water on earth. ठीक है, so what is a tide? It is nothing but periodic rise and fall in the sea level. ठीक है, so जो आपका sea level रहता है उसमें rise and fall है once or twice a day. सो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सी लेवल? तो ऐसा नहीं है कि जैसे वाटर है और वाटर के ऊपर ही कोई राइज एंड फॉल है. इट इज द एंटायर वाटर बॉडी, जो अर्थ की एंटायर वाटर बॉडी है उसका जो सी लेवल है, उसका जो लेवल है वो पूरा का पूरा राइज एंड फॉल होता है. सो यू कैन सी दिस इन दिस डायग्राम. यू कैन सी कि यहाँ पर जो है there is a rise in the entire body of water and then there is a fall. Again there is a rise and a fall. Alright, so what causes tides? See, tides का जो cause है उसको देखने के लिए you have to go outside of the earth. That is, you have to go into the space and you have to understand that there are two bodies that are majorly causing these tides. और उसमें से mainly जो body responsible है for the formation of tides, it is the moon. ठीक है, जो moon का gravitational pull है, it is far greater in terms of impacting Earth's water than as compared to the sun. ठीक है, जो मून है इट इज स्मॉलर इन साइज, सो वो पूरा का पूरा अर्थ के लैंडमास को तो नहीं इम्पैक्ट करता है. इट इज ओनली एबल टू इम्पैक्ट द लिक्विड दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस. सो जो एंटायर लिक्विड है इट इज एबल टू पुल. सो मेनली due to the gravitational pull of the moon and the sun, we see the tides, we see the rise and the fall in the sea level on earth. अब you can see कि ये जो area है, you can see this is the water that has been pulled by the मून. सो मून ज्यादा वो रहेगा, रीजन रहेगा फॉर द टाइड दैट इज caused on earth. ठीक है, and then there is other bulge. अब ये वाला bulge भी है. Now this bulge is because of the centrifugal force due to the earth's rotation. Alright, so the centrifugal force that is due to the earth's rotation. ये कैसे है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेट बॉल है एंड अगर आप उसको एकदम रोटेट करते हैं, सो द वाटर ऑन दैट विल गो आउटवर्ड्स. दैट इज योर बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब जो अर्थ है उस पर वाटर है एंड अर्थ की रोटेशन की वजह से उस वाटर को एक आउटसाइड पुल मिलता है. सो दैट इज वाई यू सी two types of bulges. एक तो है यहाँ पर and one is here. This is due to moon and this is the centrifugal. And यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोई bulge नहीं है. ये this is water अभी कम level पे है. This is the low tide. Alright, so this is how it goes. So this is your high tide and it is revolving. It is revolving as the moon is going. So जैसे moon is rotating around the earth, revolving, earth is also rotating, so उसकी वजह से centrifugal and moon is revolving, उसकी वजह से you have this bulge. Now let us understand high tide and low tide. See, this tidal bulge, as I mentioned, this is because of the moon and this tidal bulge is because of the centrifugal force. अब इसको थोड़ा और डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं that high tide and low tide, how they are formed. See, this low tide और ये हाई टाइड कैसे है? देखिए, जो वाटर है ऑन अर्थ इट इज लिमिटेड. ठीक है, सो द वाटर बॉडी इज बीइंग पुल्ड, द एंटायर वाटर बॉडी जो भी वाटर है इट इज बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स द मून. जहां मून की लोकेशन है उसकी तरफ इट इज बीइंग पुल्ड. सो यहाँ पर जो वाटर है वो भी इस तरफ गया है. ठीक है, सो इस वाटर का लेवल जो है फॉल हुआ है एंड इस वाटर का लेवल जो है राइज हुआ है बिकॉज एडिशन वाटर पुल हो गया बिकॉज मून यहाँ पे था. ठीक है, एंड इस साइड में सेंट्रीफ्यूगल क्यों लगा? बिकॉज मून यहाँ पे है तो मून इस एरिया को इम्पैक्ट कर रहा है, बट जो दिस एरिया है इट इज नॉट अंडर मून्स डायरेक्ट ग्रेविटेशनल पुल. ये एरिया डायरेक्ट ग्रेविटेशन में है. सो यहाँ पर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अर्थ की. अब अर्थ की सेंट्रीफ्यूगल लग तो हर जगह पे रही है बट यहाँ पे इट इज मोर एक्टिव बिकॉज मून यहाँ है. ठीक है, moon is acting here, so moon is able to pull this water and this water is being thrown out by the centrifugal, so that is why opposite side पे आपको tidal bulge मिलता है. so ये वाला water है जो pull हुआ इस side पे and this water has been pulled towards this side. so here you have, यहाँ पर थोड़ा पानी खाली हुआ, so you have low tide. यहाँ पर पानी add on हो गया, so you have tidal bulges. Fine, so you can see this is how it goes. Alright,
सो अर्थ इज रोटेटिंग एज वेल, तो रोटेट हो रहा है, तो इस वजह से ट्वाइस अ डे, तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन आपको हाई टाइड एंड लो टाइड मिलेगा। जहां जहां मून होगा वहां पे ये जो वाटर बॉडी है इट विल मूव। यू कैन सी हियर ऑल्सो मून इज रोटेटिंग एंड इस एरिया में उसका ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल रह रहा है। फाइन, सो यू कैन सी दिस टाइडल बल्ज as the moon is revolving around the earth. You can see this tidal bulge. Fine. Now let us understand कि जो हमारा main topic है about spring tide and neap tide. So first of all we'll do a simple definition कि एक spring tide होता क्या है. So spring tide is a tide formed when the moon and the sun are in straight line. ठीक है, जो sun and moon है अगर वो एक straight line में रहता है, this is when a spring tide is formed. Okay. नेक्स्ट पॉइंट है, ये होता है न्यू मून एंड फुल मून पे. ऑलराइट, नीप टाइड इज व्हेन द टाइड इज फॉर्म्ड व्हेन द सन एंड द मून आर एट राइट एंगल्स. तो उनका जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज परपेंडिकुलर एंड द मून इज इन द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टर. सो अगर मून की लोकेशन समझना है उससे पहले आपको फेजेस ऑफ मून पता होना चाहिए. ठीक है, उसका 28 डेज का साइकिल रहता है अराउंड द अर्थ, सो यू शुड नो अबाउट इट. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द फेजेस ऑफ द मून. Okay, so this is sun and this is earth and ये बीच में moon है. Now when the moon is in between the sun and the earth, it is not visible. ठीक है, so इसको बोलते हैं new moon. This is the अमावस्या, ठीक है, जिसमें when there is no moon visible in the sky. Because वो बीच में आ गया है, so the light from the sun is blocked, so you won't be able to see the moon here. ठीक, then after that the moon will move and जो थोड़ा लाइट है ऑफ द सन विल स्टार्ट टू फॉल ऑन मून एंड उसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट होके हमें दिखेगा. सो अब जो मून है वो दिखना शुरू होगा. नाउ इट विल गो टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वार्टर. फर्स्ट क्वार्टर मीन्स दिस इज दैट हाफ मून जो कि मूव हुआ आपका इस एक क्वार्टर में. नाउ द टाइम टेकन बाय मून फ्रॉम हियर टू हियर इज 7 days. Okay, so new moon to first quarter moon is 7 days. Then after that it will go and यहाँ पर आपको दिखेगा again after 7 days you will see a full moon. अब जो ये मून है इसमें पूरा लाइट है सन का. ओके, सो अभी you can see this entire moon. ठीक है, this is पूर्णिमा, so this is full moon. Then you will go towards this. यहाँ पे फिर से आपका थर्ड क्वार्टर है. ठीक है, एंड अगर आप इसकी लोकेशन देखोगे इट इज परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू द सन एंड अर्थ. तो अगर आप अर्थ और सन के लोकेशन के हिसाब से देखें सो इट इज परपेंडिकुलर. सो यहाँ पे भी इट इज परपेंडिकुलर. ठीक है, एंड मून स्ट्रेट लाइन में कब है? व्हेन इट इज अ फुल मून एंड अ न्यू मून. ऑलराइट, एंड यहां से यहां भी 7 days, फिर यहां टू दिस प्लेस इज अगेन 7 days. सो 7 + 7 + 7 + 7 is 28 days. वो पूरा अपना जो साइकिल है मून कंप्लीट करता है. ऑलराइट, अब विल अगेन रीड द डेफिनेशन जो हमने पढ़ा. The spring tide is formed when the sun and the moon are in straight line. So straight line कब है? दो locations पे है, new moon पे and full moon पे. ऐसे लिखा हमने new moon and full moon. The next is the neap tide is formed when the sun and the moon are at right angle. So right angle पे कब होगा? This is the right angle. Fine. So this is the first quarter moon and again third जो third quarter moon है वो भी right angle पे है, perpendicular है. So that is the place where the neap tide will be formed. Alright, so let us understand in detail. So spring tide is formed when the sun and the moon are in straight line. New moon and full moon पे होता है ये. The pull by the moon and the sun is maximum. So let us understand this. See, ये है कौन सी location? Is this a new moon or a full moon? This is a new moon. Fine. So ये new moon है and this is sun. अब जो है इनका पुल है, you can see this is earth और जो ये yellow portion है, this yellow portion is the pull by the sun. तो ये आप देख रहे हो कि इतना ज्यादा significant नहीं है टाइड्स में. सो दैट इज वाई अगर हम टाइड्स की बात करते हैं तो मेन रीजन फॉर द बिल्डिंग ऑफ टाइड इज द लोकेशन ऑफ द मून, बिकॉज वो बहुत पास है और उसका ग्रेविटेशन पुल इज मोर इफेक्टिव इन पुलिंग द वाटर. ठीक है, सो अब जहां पर मून है, सो दिस इज मून एंड दिस इज सन.
सो यहाँ पर ये मून का ये सन का पुल है एंड दिस वन इज मून. सो इसको अगर आप एड ऑन कर देंगे, ठीक है, दोनों की ग्रेविटेशनल पुल को ऐड करेंगे तो यू विल गेट दिस बल्ज. ठीक है, अ बिगर बल्ज. सो बिगर बल्ज क्यों हुआ? बिकॉज मोर जो पुल है, सो द पुल इज मैक्सिमम एट दिस लोकेशन. इसी तरीके से फुल मून पे भी यहाँ पर जो है आपका मून है, सो मून का इस लोकेशन पर व्हेन दे आर इन स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम पुल रहता है. ठीक है, सो आपको अगेन ये एक स्प्रिंग टाइड बनता है. सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्प्रिंग टाइड? किसी टाइड को देखकर आप कैसे बोलोगे कि एक स्प्रिंग टाइड है? इट इज द हाईएस्ट हाई टाइड. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हाई टाइड पता है, जैसे ये सी लेवल है एंड इसके ऊपर अगर आपका लेवल गया दैट इज हाई टाइड, और इस सी लेवल के नीचे गया दैट इज अ लो टाइड. फाइन. अब आपने बोला कि स्प्रिंग टाइड इज द हाईएस्ट हाई टाइड. फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल डेज में आपका हाई टाइड रहता है इतना, बट स्प्रिंग टाइड के टाइम पे आपका हाई टाइड रहेगा इतना. Fine. So during a spring tide, you see the maximum height of water being raised. So जो हाई टाइड पहले इतना आता था वो अब हाई टाइड काफी ज्यादा हो गया है. ठीक है, सो दिस इज मोर. सो द हाईएस्ट हाई टाइड्स आर ऑब्जर्व्ड. तो तभी आपको पता चलेगा ना कि एक स्प्रिंग टाइड है, बिकॉज वाटर बहुत ज्यादा ऊपर आया है. एंड देर इज अ मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द हाई टाइड एंड द लो टाइड. नाउ हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब देखो, दिस इज ये हाई टाइड यहाँ पर है, राइट? अब जितना ज्यादा इनका ग्रेविटेशनल पुल है मून का, उतना ही ज्यादा ये लोग यहाँ से पानी ले पाएंगे, राइट? दिस इज द लो टाइड लोकेशन. सो जितना ज्यादा इन्होंने इधर पानी इकट्ठा किया उतना ही पानी यहाँ पर कम होगा. तो इफ यू सी द डिफरेंस कि हाई टाइड हमारा रह रहा है इतने मीटर्स पे एंड लो टाइड हमारा रह रहा है इतने मीटर्स पे, सो अगर आप उसका डिफरेंस देखोगे इट इज द मैक्सिमम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है. फाइन. एंड ये कम हो गया है, सो अगर आप माइनस करोगे सो द डिफरेंस देयर इज अ लॉट. ठीक है, सो दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड कि स्प्रिंग टाइड पे, क्योंकि अगर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा स्प्रिंग टाइड पे, सो दे कैन राइट दिस कि स्प्रिंग टाइड इज व्हेन यू हैव द हाईएस्ट हाई टाइड्स. ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो आपको यहाँ पर स्प्रिंग टाइड में रखना है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा आपको फोर्स जो ग्रेविटेशनल पुल है ज्यादा मिलता है. देन नीप टाइड. अब नीप टाइड कब होगा? व्हेन द मून इज इन द फर्स्ट क्वार्टर एंड द थर्ड क्वार्टर. अब यहाँ पर तो न्यू मून था, दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर. नाउ यू कैन सी परपेंडिकुलर है. ठीक है, अब देखिए जो मून है वो इधर पुल कर रहा है वाटर को एंड द सन इज पुलिंग हियर. सो दिस येलो वन इज द सन एंड दिस ग्रेइश इज जो है ये मून का पुल है. अब ये जो दोनों पुल हैं दे एक्चुअली बैलेंस आउट ईच अदर. ठीक है, सो अभी आपका जो हाई टाइड इतना था उससे भी थोड़ा कम रहेगा, बिकॉज दोनों ही तरफ से आपको पुल है. सन का अलग है, मून का अलग है, राइट? सो नीप टाइड क्या थी? टाइड इज फॉर्म्ड व्हेन द सन एंड द मून आर एट राइट एंगल एंड द फर्स्ट क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर. ये हम पढ़ चुके हैं. द अदर थिंग इज द पुल बाय द मून इज बैलेंस्ड बाय द सन. यू कैन सी दिस पुल इज बैलेंस्ड बाय द पुल ऑफ द सन. सो अब ये जो है कॉन्ट्रास्ट जो रहा है हाई टाइड का लो टाइड का इतना नहीं है, इतना ज्यादा हाई टाइड आपको नहीं मिला है. सो यू विल फाइंड द लोएस्ट हाई टाइड्स आर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ नीप टाइड. ठीक है, सो नॉर्मली क्या था, दिस इज योर सी लेवल एंड ये आपका नॉर्मल हाई टाइड रहता है, बट ड्यूरिंग नीप टाइड आपका हाई टाइड ही कम है. ठीक, स्प्रिंग टाइड में जो आपका नॉर्मल हाई टाइड का लेवल है उससे भी ज्यादा हाई टाइड रहता है. ठीक, और अगर आपका नीप टाइड है, सो जो नॉर्मल हाई टाइड आपको मिलता है उससे थोड़ा कम. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर आप इसको वीडियो को दोबारा देखोगे सो मे बी इट विल बी क्लियर. सो इस टाइम पर क्योंकि इतना हाई टाइड आपका नहीं आया जितना एक्सपेक्टेड था, सो यू विल गेट द लोएस्ट हाई टाइड्स ड्यूरिंग दिस टाइम. हाई टाइड तो रहेगा बिकॉज पुल तो है मून का, बट इतना पुल नहीं है बिकॉज सन भी अपनी तरफ से और पुल कर रहा है. Alright, and now the difference between the high tide and the low tide is the least. So देखिए ये मून इधर पुल कर रहा था, सन इधर पुल कर रहा है, so इतना ज्यादा लो टाइड का लो मतलब हाई टाइड ज्यादा नहीं हो पाया. ठीक है, मून ज्यादा पानी अपनी तरफ पुल नहीं कर पाया ताकि लो टाइड भी रहे और हाई टाइड भी रहे. ठीक, सो दैट इज वाई यू विल सी कि हाई टाइड और लो टाइड में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, बिकॉज इतना ज्यादा पुल नहीं है दोनों तरफ से जो बैलेंस आउट हो रहा है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से.
ऑलराइट, सो आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आप इसको दोबारा देख सकते हैं सो दैट अगर आपको थोड़ी क्लैरिटी नहीं हुई है, थोड़ी और क्लैरिटी हो जाए. सो थैंक्स अ लॉट.